سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابانا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابانا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنت فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹا مجھے بتاؤ، آپ نے جو آج ایگزام دے دیا کتاب اولاد اور والدین کے حقوق کا، اس کتاب سے آپ نے کیا پایا اور اپنے بھائی بہنوں کو اس کے پڑھنے کے بعد آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس سے کیا کچھ پایا، کیا کچھ نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم نے اس کتاب سے کیا کچھ سیکھا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب سے کیا کچھ نہیں سیکھا. ہم نے اس کتاب سے بہت کچھ سیکھا. آج کل خاص کر جو بھی بچے ہیں وہ والدین کی اطاعت نہیں کرتے. اس میں والدین کی اطاعت کی وعید کی گئی ہے کہ کتنی والدین کی اطاعت کرنی ہے. تو ہم اپنے بھائی بہنوں کو یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کتاب پڑھ لی ہے کہ والدین سے نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اب ہم جانتے بھی ہیں، اگر نہیں جانتے تو وہ الگ سوال تھا. اب ہم جانتے ہیں تو ہمیں اپنے والدین سے جو ہے ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ اپنے دیکھنے والوں کو جو ابھی آپ کو دیکھ لیں گے سوشل میڈیا کی وساطت سے، تو انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ آئندہ ایسے پروگرام میں شمولیت کرنے کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں ان کو؟ ہم انہیں یہی مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہ ہونے والے جو ہوتے بھی ہیں پروگرامز اور ہونے والے ہیں انشاءاللہ بہت سے پروگرامز فیوچر میں، تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان میں شمولیت کریں، کیونکہ ضروری نہیں کہ اس میں پوزیشن آئے. جو اس سے سیکھا جاتا ہے وہ بہت کچھ ہے. اس سے جو سیکھتے ہیں پھر اس پر عمل کریں، وہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سدھار سکتی ہے. تو ہمیں ان میں شمولیت کرنی چاہیے. چلو جزاکم اللہ. اچھا یہ ایک بات آخر پہ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے جو آج ایگزام دے دیا پیپر کا، کیا امید ہے پوزیشن حاصل ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاکم اللہ. بیٹا مجھے بتایا آپ کہاں رہتے ہیں اور یہ جو کتاب ہم نے آج کے اس ایگزام میں رکھی تھی، اس کتاب سے آپ نے کیا پایا اور مزید آپ اس سلسلے میں جو ہمارے بھائی ہیں، آپ کے بہنیں ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے اس کتاب سے یہ حاصل کی کہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے. میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں بھائی اور بہنوں کو کہ اپنے والدین کا حسن سلوک کریں. اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں آئے کتاب پڑھ کر. اور یہ جو ہم نے ایگزام دیا آج یہاں پر، اس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. مگر اس کتاب سے حاصل یہ ہوا کہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بیٹا، ہم نے یہ جو کتاب رکھی ہے اولاد اور والدین کے حقوق، تو اس کتاب کو پڑھ کر آپ نے اس سے کیا کچھ پایا اور کیا کچھ اس سے حاصل کیا آپ نے، اور کیا کچھ نصیحتیں اور وصیتیں اس سے پائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری جو یہ کتاب تھی اس نے ہمیں بہت کچھ سیکھا، والدین کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کی حقوق ہمیں سیکھے کہ ہمیں اسے کیا فائدہ ملے، کہ ہمیں والدین کی فرما برداری بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر والدین کی فرما برداری نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے بعد والدین کا شکر ملایا ہے. اس سے ہمیں بہت کچھ سمجھ آیا. اتنا پتہ نہیں تھا کہ والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا اتنا کچھ مطلب ان کی یہ شان ہے. احادیث کریمہ سے ان کی جو شان وارد ہے، میں خود
इस बारे में लाइल्म था। जब ये पढ़ा तो इंशाल्लाह मैं खुद ये आज से ये मैंने इरादा कर लिया है, पुख्ता इरादा कि मुसम्मम इरादा है कि आज के बाद इंशाल्लाह जो वालिदैन की जो कदर मंजिलत मेरी यहाँ अपने दिल में है वो इंशाल्लाह मज़ीद और बढ़ेगी अल्लाह के करम से इंशाल्लाह। जज़ाकमुल्लाह जज़ा। जैसा कि मगरिबी तालीम हम पढ़ते ये भी ज़रूरी है कि हमें इन फील्ड में भी आगे बढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हमें दीन में ज़्यादा फोकियत हासिल करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना है। और जिस लेवल का यहाँ इम्तिहान था, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता था कि इस लेवल का एग्ज़ाम होगा। ये एक बेहतरीन, और मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसा एग्ज़ाम होना ये एक ऐसी अमल है कि ये इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह आगे भी ऐसे एग्ज़ाम होते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस किताब का इम्तिहान इन हालात में करना मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी दावत है, क्योंकि इसके अंदर वालिदैन और औलाद एक दूसरे के हुकूक क्या है बेहतरीन अंदाज में इसके जो मुअल्लिफ़ है ने अच्छे अंदाज में इसको लिखा है। इस पे बहुत अच्छा उसने बहस भी किया है। तो मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, अपने तहसील की तरफ से इस पूरे टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जमीयत अहले हदीस हल्के रसू तहसील नारबल, क्योंकि इस साल तहसील अपनी तरफ से जो उनका ये प्रोग्राम होता है, सालाना प्रोग्राम होता है इस्लामिक एनकरेजमेंट टेस्ट, नहीं कर पाया। लेकिन हमारे तहसील के अंदर जो सबसे मजबूत हल्का है जमीयत अहले हदीस हल्के रसू, तो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी आज अच्छे अंदाज से निभाई है। तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ इस सारी टीम का सबसे पहले। दूसरी बात कि इस इम्तिहान की जो अहमियत वो क्या है, अगर आप देखेंगे मॉडर्न इस दौर में सबसे नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है हमारे घरों के अंदर जो माँ बाप और बच्चे के दरमियान एक मज़बूत रिश्ता होता है। लेकिन आए रोज़ हम देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर बहुत बड़े फितने रोनमा हो रहे हैं। एक वालिद एक बच्चे से दूर हो रहा है, एक बच्चा अपने वालिदैन का नाफरमान बन रहा है। तो मुझे उम्मीद है जिन बच्चों ने ये किताब पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त इम्तिहान दे रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर तहत। तो मुझे उम्मीद है ये सिर्फ 200 बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये 200 बच्चों इनके ख़ानदान हैं, उनके रिश्तेदार हैं। जब उन्होंने ये किताब अच्छी तरह से पढ़ी होगी तो ज़रूर उसका असर उन पे पड़ा होगा ज़रूर, क्योंकि किताब के अंदर जो असर है, किताब के अंदर पढ़ने के बाद इंसान के जहन में जो एक इस्लाह पैदा होती है वो बहुत मज़बूत होती है। सुनने के बजाय, देखने के बजाय जब इंसान कोई किताब पढ़ता है, इसका मुताला करता है, तो अल्लाह ताला के फजल करम से उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। तो इस अंदाज से मैं समझता हूँ कि उन्हें एक बहुत बेहतरीन किताब का इंतखाब किया था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं इस वादी के अंदर जमीयत अहले हदीस जम्मू व कश्मीर जो एक दावती तबलीगी जमात के साथ साथ रफ़ाई और अपने अवाम के लिए, अपने समाज के लिए बहुत सारी काम करती आ रही है। तो जमीयत अहले हदीस तहसील नारबल इसी जमात का एक टुकड़ा है, इसी जमात का एक हिस्सा है। तो तहसील नारबल ने भी अपने प्रोग्रामों के तहत इस्लामिक एनकरेजमेंट टेस्ट का पहले से ही एक ये तय किया है कि हम हर साल एक प्रोग्राम इसके तहत करते आएंगे। लेकिन चूँकि हालात या बाकी आप जानते हो, तो इस प्रोग्राम के तहत जो आज इस हल्के ने ये काम किया है, वाकई एक बार फिर मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और इन सारे बच्चों को और इनके वालिदैनों को कि जब भी हम इस किस्म का कोई प्रोग्राम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे, इनके वालिदैन, ये लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है जितने भी हमने अभी तक एग्ज़ाम किए हैं, चाहे तहसील की तरफ से हो या हल्का जात की तरफ से हो, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर इन अपने जुमा का भी मोहतरम अली मोहम्मद वानी साहब जो इस वक्त हमारे जमात के एक
बुज़ुर्ग तरीन शख्सियत हमारी तहसील के अंदर है। मेरे सेक्रेटरी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे नशर इरशाद साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, नायब सदर साहब हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो एक बार फिर हम सब इस पूरी टीम का और इन जवानों का, इन बुज़ुर्गों का और खुसूसन इस गाँव का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ मस्जिद के साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सल्फिया स्कूल इंस्टीट्यूट रसू जो इस तहसील के अंदर इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है माशाअल्लाह। जो हमारा एकेडमिक है, इसके साथ साथ इस स्कूल के अंदर हम दीनी तालीम भी देते आ रहे हैं। तो मैं आपके ज़रिए से, इस मीडिया के ज़रिए से तमाम वालिदैन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। यहाँ पे जो ये स्कूल चल रहा है, ये हाई स्कूल है, सल्फिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रसू। तो मैं वालिदैन से ये इल्तिमास गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने बच्चों के मुस्तकबिल, बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा दुनियाई तालीम के साथ साथ इस एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ बल्कि इससे भी बेहतर आपका बच्चा अगर आगे जाए, तो बेहतरीन स्कूल है आपके इलाके के अंदर, आपके इस एरिया के अंदर, आपके इस तहसील के अंदर, वो है सल्फिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रसू। मैं चाहता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ आप सब अपने बच्चों को कोशिश करेंगे इस स्कूल के अंदर एडमिट करने के लिए, और इंशाअल्लाह रहमान आप ज़रूर एक डिफरेंस पाएंगे, एक फ़र्क पाएंगे बाकी स्कूलों के अंदर और इस स्कूल के अंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप बखूबी देख रहे हैं कि आज 15 फरवरी को जो हमने किताब औलाद और वालिदैन के हुकूक का हमने आज इस्लामिक इनकरेजमेंट टेस्ट लिया है, इस किताब को इस इम्तिहान में इस चीज़ के लिए मुंतखब करना बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह ताला का फरमान है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरन इला आखिरिल आया। तो यहाँ हमें मकसद है कि आज के इस माशरे में, जिस माशरे में इंसान ज़्यादातर मगरिबी तालीम को अपने ऊपर लाजमी जानता है, तो जिस तालीम ने एक वालिद और एक औलाद के दरमियान एक बड़ी गैप कायम कर दी, एक गैप बना दी, जिसकी वजह से एक औलाद अपने वालिदैन के हुकूक को यकसर फरामोश करता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस किताब का इंतखाब किया, ताकि एक वालिद को ये पता चले कि मेरे बेटे के हवाले से, मेरे औलाद के हवाले से मुझ पर अल्लाह ताला ने क्या ज़िम्मेदारी आयद की है, मैं कहाँ तक उनको निभा रहा हूँ। और एक औलाद इस किताब को पढ़कर ये चीज़ जान ले कि मेरे वालिदैन के मुझ पर क्या हुकूक है, मैं कहाँ तक उनको पूरा कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस किताब का इंतखाब किया, ताकि वो गैप जो आजकल हम अक्सर घरों में देख रहे हैं औलाद और वालिदैन के दरमियान, ताकि वो गैप किसी हद तक कम हो जाए और एक औलाद अपने वालिदैन का हक़ समझे और एक वालिद अपने औलाद का हक़ समझे, और इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो दूर हो जाए, और एक आपसी रिश्ता जो उनका है औलाद और वालिदैन के हवाले से वो मुस्तहकम हो जाए। यही हमारे अगराज़ व मक़ासिद थे इस सिलसिले में, ताकि जो गैप ये दूर हो रही है इनमें ये नज़दीक हो जाए और रिश्ता मुस्तहकम हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस नियत में कामयाब करे और इस नियत का हमें अज्र सवाब दे अपने दरबार में। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम तालिब और तालिब इल्मों को, तालिबात और तालिब इल्मों को कामयाब करे। मगर साथ ही मैं एक ये बात भी बताऊं, बदकिस्मती इसमें
जो मैंने देखी इसमें कि आज के इस इम्तिहान में करीबन 80% जो है जिन पार्टिसिपेंटों ने इस इम्तिहान में हिस्सा लिया वो तालिबात थे, और जो मेल हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, नौजवान हैं, उन्होंने इस किताब को पढ़ना और इसमें इस एग्ज़ाम में शमूलियत करना महसूस नहीं किया। ये एक बदकिस्मती है कि हमारे जवान इन चीज़ों से दूर रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे नौजवानों के अंदर दीनी शौक़ और ज़ौक़ पैदा करे और इन्हें दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करे और इन्हें अपने वालिदैन के हुकूक़ समझने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।